Yeah, understood now. So anyways, remember sweet potato. Everybody can remember sweet potato. This sweet potato is basically growing out through roots. तो ये क्या, इसको अगर तुम soil में डालोगे, the root structure, you will see that it keeps growing into numerous plantlets. So because we have used the root structure as a propagule, you will see that it develops into numerous plants, and that's the reason we call it as the reproduction by roots. और ये roots इतने fleshy क्यों है? तुमको पहले तो समझो कि जो part है ना, अभी for example this is root. Do you see root is fleshy? Sweet potato को हम खाते हैं, potato को भी हम खाते हैं. तो वो क्या है? That whole plant का stored food is there in the potato. That whole plant का food is stored in the sweet potato. You understand this? इसीलिए वो fleshy होता है. Even if I talk about ginger, तो ginger में क्या है? There is pulp. The pulp का मतलब there is a little flesh that is there. There is a little card that is there. तो ये सारा stored food होता है plant. Sweet potato भी ऐसा ही है. इसीलिए तुमको इतना सारा flesh मिलता है उसके अंदर. कौन सा? ये वाला नहीं खाता. खाली स्वीट पोटैटो खाते हो. मार्केट में तुमको क्या मिलता है? स्वीट पोटैटो मिलता है ना. नहीं खाते नहीं थे बात पूछने बोले हम. जैन पीपल आई गेस डोंट eat you eat sweet potato. अंदर में जैन हाँ शाह इतना तो जैन है पर वड़ा पाव खाते हैं. वड़ा पाव खाते हैं. कभी कभार छुट्टी रख सकते हैं. कभी कभार हफ्ते में मेरे पापा तो रोज खाते हैं. Okay. Anyway, no, but overall, if you talk about Jain, they don't eat underground things, ना? तो sweet potato भी तो underground ही होता है. तो तुमने देखा होगा तो मिट्टी वाला रहता है. उसको घर जाके अच्छे से वॉश करके फिर उसको छील के खाते हैं. हम लोग में तो जिंजर भी नहीं खा सकते. छुट्टी है उसकी. क्या? जिंजर भी नहीं खा सकते. हाँ वो तो मुझे समझ आ रहा है. क्या फर्क पड़ रहा है? अरे it's their religious quality. इतना मगजमारी नहीं करें. जिसको जो करना है वो करने दें. They come out of all these things. Live and let live. And they also should not tell us. Let us know, my friends. ना तुम मुझे बोलो, ना मैं तुमको बोलूँ. तो जो खाना तुम खाओ मुझे खाना. बराबर ना? सही. मैं तो अपनी वेजिटेरियन अपनी नॉर्मल. हाँ मतलब I ask if they have a little problem, किसको problem होता है? किसको नहीं होता है? मेरे जैन दोस्त ने चिकन खा लिया मेरे टिफिन से. उसने खिलाया, खाया नहीं. ओके, मैं वो हाथ में बोला मत खा भाई मत खा, वो खा लिया. निकल गया मेरे को. उसको पूछना चाहिए था. अच्छा लगा. उल्टी क्या हो? हाथ करके. Okay, चलो next up advantages, disadvantages है. I'm just reading advantages quick. Only 3 points. Reproduction takes place in a shorter time. अगर ऐसी तरह से reproduction हो रहा है तो short time लगेगा. इसको long time नहीं लगता है. Seed से अगर तुम किसी plant को grow करते हो तो उसको बहुत time लगता है. Take example of wheat and all. Wheat is an annual plant. Annual का मतलब ये time इसको sow किया तो next year उसका harvest मिलता है ना. 1 year. Okay. So mango if you talk, mango का plant कब तक उगेगा? उसको 5-7 साल लगेगा जब तक वो इतना बड़ा हो जाएगा फिर mangoes आएगा. ठीक है. So new plants thus produced are spread into very small area. Did I tell you about bryophyllum? तो bryophyllum में इतने छोटी सी जगह में इतने सारे plants उग जाएंगे. And also it's a sure method of propagation. हमको पता है it is going to happen. Okay, it is going to happen. तुम अगर घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं कि आधे सो रहे हैं आधे नींद में है ये. अब यहाँ हो तो क्या ही कर सकते हो? थोड़ा तो जाएगा ना भेजे में. 80% यहाँ जाएगा, उधर तो 10% जाएगा. कोई सो गया सीधा चालू रख के तो मैं क्या ही कर पाऊंगी? मैं थोड़ी तुम्हारे घर पे आ पाऊंगी. मैं तुमको चिल्ला पाऊंगी गुस्से पे. पर तुम्हारा तो कुछ भरोसा नहीं. तुम लैपटॉप ही बंद कर दो, ये चिल्लाएगी नहीं बस, है ना? So it's a surer method by this way. And any which ways, if I talk about the fourth one, all the good characteristic of one plant remain in the daughter plants. तो जो भी mother plant है, for example ये जो bryophyllum का leaf गिरा ना, इसके सारे characteristic इसके daughter plants में आ जाएंगे. Disadvantages भी है. जैसे तुम्हारी अच्छाई है तो बुराई भी है. तो disadvantages भी है. हमारी अच्छाई है नहीं है, बुराई दिखती है मुझको. चलो. So all the plants are genetically identical. Do you understand what is genetically identical? मतलब जो अलग-अलग में है similar characteristics will be in the daughter plants. Genetical का मतलब है अंदर से, दिखने में नहीं, अंदर से genetic. Similar genetically identical अगर होगा, तुम सोचो अगर इसमें से किसी एक प्लांट को कोई डिजीज लग गई तो will it affect all the ones?
अगर एक में डिफेक्ट आ गया तो सब में डिफेक्ट आ जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसलिए डिफेक्ट लगना बहुत बहुत कॉमन है. एंड सेकंड, द डिस्पर्सल ऑफ प्लांट डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन. डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? स्प्रेड. तो वो अपने आप से नहीं हो पाता, उसको करवाना पड़ता है. अदरवाइज एवरीथिंग विल गेट वेरी वेरी क्राउडेड और उस शख्स को न्यूट्रिशन भी नहीं मिल सकता उसको. So this one is all about vegetative propagation by natural, a very natural method. Next up we come to is artificial propagation. Artificial propagation सुनो, बाद में पढ़ लेना, मेरे पास टाइम नहीं है ये पढ़ाने के लिए. सुनो, what are we doing? 15 minutes. Artificial switch. I will take this and I will carry it on my head so that you go this. Okay, just be quiet. So we have three or four: cutting, grafting, layering, and artificial propagation. जी, ओ अभी सुनो, रोज अगर तुमने देखा होगा, यहाँ से जब जाते हो ना सामने वाली गली में अगर तुम जाओगे तो इतने सारे वो प्लांट वाले हैं. तुम अगर देखोगे तो उनके पास छोटा सा ऐसा पौधा है रोज का, उसमें एक ही ऐसी टहनी है and you will see a full bloom rose. Technically it's not possible. इतना बड़ा रोज, एक स्टेम कैसे आया? ये क्या एक बड़ा सा पेड़ मतलब प्लांट होगा उसमें तुम रोज देखो तो समझ में भी आता है ना, इतना छोटा समझ आया तुमको. सो वी यूज्ड टू वंडर हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि भाई उनके पास तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तुम घर पे लाओगे तो उसमें कुछ नहीं होगा. तो क्या है होता है? सम ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम कटिंग. इस सबको बोलते हैं आर्टिफिशियल. डू यू रीड दैट होल दैट हेडिंग? आर्टिफिशियल का मतलब वी आर डूइंग इट. नाउ व्हाट आई विल डू इट, व्हाट आई डू इज इसमें ये मेरे घर पे आया, अगर उसको चाहिए रोज मेरे घर से, मेरे पास तो बड़ा सा प्लांट है, तुम सब आए तुमको रोज उगाना तुम्हारे घर पे. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एनी ऑफ द स्टेम जिसमें बड हो या जिसमें फ्लावर हो और बड हो ऐसा, और उसको हमने कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे. मैं देख ले तेरे लिए बोल रहे नेम किया है. हाँ तो सही करो ना, हिंदी काट दी. So what I will do is, it will take a minute. I'll cut it like this, transversely. उसको लेंगे, उसको सॉइल में डाल देंगे और तुम घर लेके जाओ. अब तुम सोचोगे स्टेम दे दिया अभी क्या ही उगेगा. स्टेम का जो बेस है ना उसमें से रूट्स will start growing, but it will take a little time. महीना. Did we grow a plant just by a stem cutting? This process is called as cutting. Okay. Next up, what we have is layering. Layering कैसे किया जाता है? We have a plant like this. ये soil surface है, okay? यहाँ पे इसका root है, and the plant is like this. इतना बड़ा okay? ये plant है जो भी, अगर इसमें से ऐसे branches निकल रही है तो अब क्या करेंगे हम? ऐसा कोई भी plant होगा जिसका base में से जो branch निकल रहा है ना, for example like this, there is a branch. इसके साथ connect करते हैं ऐसा. तो हम क्या करेंगे? root है ना बेटा, ये इसी का है ब्रांच. तो आप नीचे पढ़ने पढ़ने तो कुछ तो नहीं, ये लिखे नहीं बहुत अच्छे से. ये इसका ही ब्रांच. What we'll do is, we'll take this branch and we'll bend it. Now हम क्यों इसके लिए लेते हैं नीचे वाला, क्योंकि उसका बेंडिंग इजी होता है. तुम यहाँ से बेंड करने जाओगे तो वो टूट जाएगा. तो इसका जो सॉफ्टर ब्रांच होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से बेंड करेंगे और सॉइल के अंदर डालेंगे. अब सॉइल के अंदर से उसको थोड़ा सा से बाहर निकालेंगे and there we'll put a little stone or something ताकि वो अंदर रहे, वो बाहर नहीं आ जाए. Otherwise you bend something तो ऐसे कैसे वापस चला जाता है ना. तो बाहर निकलने का चांस है, फेल हो जाएगा ना अपना एक्सपेरिमेंट. What happens? Have you seen nodes and internodes on the stem? Nodes internodes देखा, लाइन देखा. शुगर केन पे तो बहुत अच्छे से लाइन दिखता है. हर एक स्टेम पे ऐसे होता है. तो यहाँ से जैसे बाहर जाओगे तो सारे स्टेम पे लाइन दिखते जाए. यहाँ पे ऐसी लाइंस होती है, बहुत सारी लाइंस होगी ना. जब हमने ये किया, do you see that there are 2 lines over here, 2 or 3 lines whichever, ये लाइंस में से रूट आना चालू हो जाएगा. यहाँ से रूट आएगा और यहाँ से एक प्लांट आएगा. जैसे थोड़ा सा प्लांट तुम देखो बनते हुए, you will remove this stone. And do you see that one individual plant has started forming? जब ये होने लगता है तो हम इसको काट देते हैं. From one to many. This is called as layering. What is it called as? फार्मर यूज बहुत सारे methods. Okay. And the last one we have is grafting. Out of this, last day and last 7 hours. Okay. Last one.
second last one we have it. अरे sorry. Second last one we have is grafting. Listen to this. Grafting का मतलब दो plants है, एक बहुत अच्छा है, एक दूसरा अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं. But I want to make sure that it grows properly. What I will do is एक plant का हम base देंगे. For example ये है soil surface, यहाँ पे है उसका root. Okay. Now this plant के साथ अगर मुझे उसका दूसरा variety, I'm not talking about another species, another species नहीं, variety हम लोग change कर रहे हैं. मतलब मैंगो है तो मैंगो में बहुत सारी varieties होती है जैसे, okay. So what we'll do is इसको हम लोग ऐसा incision करेंगे, मतलब we'll cut it like this. Now because this is rooted, this portion is rooted, इस portion को हम क्या बोलते हैं? Stalk. क्या बोलते हैं? Stalk. And I will take another variety. उस variety को हम कैसे cut करेंगे? ऐसा. This is called as scion or scion. Scion. इसको हम यहाँ पे लगा देंगे. Okay? now ये ऐसे तो नहीं रहेगा, तो इसको हम थोड़ा सा इस अच्छे से फिक्स करेंगे. Okay? अच्छे से. अब ये तो मैंने बहुत बेसिक पता है. ग्राफ्टिंग के बहुत सारे मेथड है, मतलब अलग-अलग कट्स होते हैं. उनको नहीं पता इतना, पर ऐसे बहुत सारे कट होते हैं. दिखा. इसके बाद इसको टेप से हम लोग रैप करते हैं. या कोई क्या करता है, वैक्स होता है ना, वैक्स, उससे भी सील करते हैं थोड़ा सा. क्यों? ताकि ओपन पार्ट में एक तो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. नहीं बेटा, फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, करेक्ट. सेकंड इज इन्फेक्शन. ओपन है ना पार्ट, तो इन्फेक्शन लगेगा. तुमको भी अगर लगता है इधर से कट, थोड़ा सा भी अगर कट होता है तो ज्यादा कट होगा तो ड्रेसिंग किया जाता है. छोटा कट होता है तो बैंडेज तो लगाते हो ना, सैवलॉन से या डेटॉल से साफ करो, वाटर से साफ करो और एक टेप लगाओ. व्हाई बोलते खुला, अगर द स्किन इज कट ओपन तो जर्म्स जा सकते हैं इसके अंदर, तो इन्फेक्शन हो सकता है. सिमिलरली यहाँ पे भी वो बैक्टीरिया ना चले जाए, हमने अच्छे से टेप करके उसको रैप अप कर दिया. व्हेन यू ओपन दिस टेप आफ्टर सम टाइम, you will see that it has joined properly and it starts growing. So it will have both the characteristics in the fruits or flowers that come up. This is called as what this is called as grafting. ठीक है? तुमको पता है एक वर्ड है मेडिकल साइंस में, ग्राफ्टिंग बोलते हैं. स्किन ग्राफ्टिंग पता है? तो अगर बर्न हो गया ना, मुझे अपने आप बर्न हो गया मेरे पैच में, क्या होगा, यहाँ से पैर से या काफ में से एक स्किन का टुकड़ा निकाला जाता है. एंड इट्स वेरी थिन, ऐसा एक लेयर जैसा होता है, इतना पतला सा वो स्किन निकलता है ना लेयर, फिर उसको यहाँ पे लगाया जाता है. तो अगर बर्न हुआ है किसी को तो स्किन ग्राफ्टिंग का नाम है. या कोई सर्जरी हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो ग्राफ्ट का मतलब होता है हमने उसको लेके नॉर्मल के साथ उसको ओवरलैप किया. नहीं, यहाँ पे हमने ओवरलैप. ओके. The last one you have is artificial propagation. Sorry, micropropagation. Everybody read micropropagation, till then I'll draw this. मुझे बताओ ये वाला हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. आपको ये micropropagation पढ़ो. So you also read micropropagation. हाँ, tissue culture. Tissue culture and micropropagation is one and the same thing. In some reference book it is written as tissue culture, in some it is written as micropropagation. It is one and the same thing. Everybody will read, otherwise I'll break your neck. Simple. Even if I like you, I'll break your neck. टिश्यू माइक्रो. नहीं बेटा, कैसा होगा? कैसे तुमको 4 नाम से बुला सकती हूँ? हाँ. तुम तो हाई बोलेगा. अगर मेरे को सिद्धांत सिद्धू मूसेवाला और मुझे हाँ सोसाइटी में कुछ फरीदा बुलाते कुछ राजा बुलाते. चलो. तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या बात है? हाँ मैम, ये क्या होगा? तुम करो ना, तुमको माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ने बोला है. क्विक. ओके, एपेक्स क्या होता है? एपेक्स इज टॉप, द टॉप पोर्शन. हाँ, आपने ये वाला मैं बोला था. क्या आपने खुद तो किया था, फिर क्या? हाँ, ये वाला भी हमने किया हुआ. हाँ, अभी नहीं आएगा, कॉलेज में आएगा. वाला तो पढ़ी था. नहीं रे.